हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जेलर के क्लाइमैक्स सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। अब ये ओ नाटक कर रहे हैं, हाँ, किडनैप करके लाए हैं वापस। मुझे लगता है वो उन्हीं के साथ सेफ थे भैया। हम्म। पापा नाटक करेंगे कि मैं कैसे छुट के आया हूँ एंड ऑल। எப்படிப்பா இருக்கீங்க? நீங்க இல்லைன்னா எனக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னு கூட தெரியல. நீங்க திருப்பி வந்து என்னை காப்பாத்துவீங்கன்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல. உங்களை மாதிரி ஒரு அப்பா கிடைச்சதுக்கு நான் எனக்கு எப்படி என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. எனக்கு அம்மா, ரித்து, ஸ்வேதா இவங்களெல்லாம் பார்க்கணும் போல இருக்கு. என்னையே இப்ப இங்கே கூட்ட வந்தீங்க. வாங்கப்பா, நம்ம வீட்டுக்கு போலாம். போலாம் போலாம். ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, கொஞ்சம் உட்காந்து பேசலாம். ये तुम्हारे बाप है, நீங்க வெளியே இருங்க. बहुत तेज है तुम्हारे जैसे। இப்போ நீ ஒரு மோசமான குரூப் கிட்டது வெளியே வந்திருக்க. டெஃபினட்டாக அவங்க உன்னை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வீட்டுக்கு போனால் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லதில்ல. நான் டிஜிபி கிட்ட பேசிட்டேன். நாளைக்கு காலையில் 2 பேரும் டிஜிபி கிட்ட போகலாம். நீ நடந்ததெல்லாம் அவர்கிட்ட சொல்லு. அந்த குரூப்பை கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட் அவுட் பண்ணி அவங்களெல்லாம் பிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வீட்டுக்கு போகணும். அதான் तो நமக்கு पूरा safe. प्लान ही कर। சரிப்பா, எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு. நான் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நாளைக்கு காலைல பேசுறேனே. वो कुछ तो सोच रहे हैं उस हाँ, प्रोसेस के नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में। அர்ஜுன், அப்பா கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமாப்பா? இல்லப்பா, அதான் எல்லாம் சொல்லிட்டேனேப்பா. अब भी टाइम था उनके पास, वो आखिरी चांस दे रहे थे। शायद अगर वो बता देते थे तो हाँ, इतना टेंशन बिल्ड हो रहा है ना यहाँ मतलब पे। उन्हें ये भी लग रहा है कि हो सकता है वहां से बचने के लिए उन्होंने कुछ बोल दिया हो उनसे। मैंने बोला ना, वो सोचने के लिए टाइम ले रहे कि अभी उस बीच में उनको करना क्या है। था। பண்ணிருண்ணே, வர்மா, இங்க வா. पनीर। என்ன வர்மா? இதுல பேசு. ஹலோ, நீங்கள் டெஸ்ட்டு கொடுத்த க்ரௌண்ட் வந்து ஒரிஜினல் கிடையாது, ஃபேக்கு. அது எங்கள் எல்லா டெஸ்ட்டும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. இல்லையே, நாங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே தானே இருந்தோம். அது ஒரிஜினல் க்ரௌண்ட் மாதிரியே சேர்த்துக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கானுங்க, ஆனால் அது ஒரிஜினல் கிடையாது. இங்கே மட்டும் இல்லை, நீங்கள் இன்னும் அதை எத்தனை டெஸ்ட் காமிச்சாலும் அது எங்கேயும் பாஸ் ஆக போகிறது கிடையாது. ஏன்னா இட்ஸ் கிளியர்லி ஃபேக். இல்லைங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஃபேக்காக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. நாங்கள் நல்லா செக் பண்ணிட்டோம், நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி அதை நிறைய வாட்டி செக் பண்ணியாச்சு சார். இது तो वो भी तैयारी थे, हाँ, उनको पता था। हाँ, मतलब ये मिले हुए थे। कैसा? ओ भाई வேகா, மொத்தமா வேகு. இவ்வளவு நாள் என் கூட இருந்த எனக்கா ஃபேக்கா? தன்ராஜா, நீ என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அப்பனா ப்ரொஃபஷனல், 100% ப்ரொஃபஷனல். काफी वियर्ड लग நீ रहा அச்சி है। சேர்த்தனா நிஜமாவே சேர்த்துருவேன். நானே செத்துறேன் வர்மா. டேக் கேர். ये तो फिर बहुत लॉयल थे उसके लिए। அப்பா, मुझे लग रहा था एक टाइम पे वो मारेंगे, मुझे लगा गन இந்த கேஸ்ல யார் होंगे। யார் இன்வால்வ் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன வேணா இருக்கலாம். ஒருவேளை நான் செத்து கூட போயிருக்கலாம், அது கூட ஓகே. இப்போ நீங்க அதுல இன்வால்வ் ஆனா உங்க ஷேடோல இது மொத்தத்தையும் பண்ண மாதிரி ஆயிடும். டிபார்ட்மெண்ட்ல எனக்கான வர வேண்டிய கிரெடிட்டும் வராம போயிடும்.
எனக்கு ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க. இந்த மொத்த குரூப்பையும் கண்டுபிடிச்சு இந்த கேஸை சால்வ் பண்ணிடுறேன். क्या सॉल्व करोगे तुम? அது வரைக்கும் நீங்க இந்த கேஸ்க்குள்ள வராம இருந்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ப்ளீஸ் பா, எனக்காக. ஓகேப்பா, ஓகே. எதுக்கும் இதுவும் கையில் இருக்கட்டும். मुझे तो लग रहा है ये गन देना भी प्लान का ही हिस्सा है. அர்ஜுன், அப்பா கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமாப்பா? அதான் எல்லாம் बार சொல்லிட்டேன்ப்பா. बार पूछ रहे, वो चांस दिए जा रहे हैं. कब उनका लास्ट चांस होगा कोई नहीं बता इस सकता. होप में कि चलो वो प्रेशर में कर रहे हो या फिर उनका प्लान. எங்க அப்பா எல்லாத்தையும் டிபார்ட் ஃபோனில் வேண்டாம், டாப் பண்ணுவாங்க. நேரில் வா, பேசிக்கலாம். तो वो फेक ही है तो वो क्या 50-50 करने वाले हैं अभी. उनको पता ही नहीं ना कि वो फेक है करके. अब फेक है तो इनकी जान एक्चुअल में खतरे में हो सकती है. என்ன பயப்படுத்துறியா? எங்க அப்பா போலீஸ்ட்ட போய் எல்லாம் சொல்லிட்டார். போலீஸ்ட்ட போய் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷனோட பயங்கரமா காம்ப்ளிகேட் ஆயிடும். அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன். ஆனால் அதோட முக்கியமான 2 விஷயம் நான் சொல்லட்டுமா? என்ன? உங்க அப்பா இருக்கிறவன் அனுப்புனாரு, அது ஃபேக்கு. ओ भाई साहब. ஃபேக்கா? ஃபேக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்ணிட்டு இருந்த? மயிரை பிடிங்கிட்டு இருந்த. அதான் நான் புடிங்கிட்டு இருந்தேன், அது என்னோட மிஸ்டேக். ஆனா அதோட பயங்கரமான வேறொரு விஷயம் சொல்லட்டுமா? அந்த கிரீடத்துக்கு நடுவில் பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு பிங்க் கலர் டைமண்ட் இருந்ததே, அதுக்குள்ளே சின்னதா ஒரு கேமரா இருக்கு. கேமராவா? मतलब वो क्राउन में कैमरा था, इस वजह से उनको सब दिख गया. இங்க நடந்த எல்லாமே உன் அப்பா பார்த்துருக்கு. பையன் इसलिए திருடுன்ற अब வரைக்கும் उनको அதுக்கு ध्यान में आता हूँ आ रहा हूँ. தெரிஞ்ச உடனே அமைச்சிருக்காருனா எனி டைம் அவருக்கு வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீ போய் என் ஃபேமிலியை லாக் பண்ணு. அதை வச்சுதான் அவர்கிட்ட இந்த எஸ்கேப் ஆக முடியும். அதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கு. ஃபேமிலியை லாக் பண்ண ஆள் அனுப்பியாச்சு, எங்க இருக்கிற ஹேண்டிக்கு எல்லாமே வெளியில அனுப்பியாச்சு. இனி நீ மட்டும்தான் பேலன்ஸ். அது எப்படி ஃபேக் கிரவுனை கொடுத்துட்டு ஒரிஜினல் பாயிண்ட் கூட்டிட்டு போலாம்? அதான் உன்னை முடிச்சிட்டு ஜெயிலர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே இருந்து கிளம்பும். Oh my ओ god. भाई साहब, अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड. நான் தான் சொன்னேன்ல வருவாருன்னு. अपना भिड़ो आ गया है रेस्क्यू करने. वो पूरे प्लान के साथ आए हैं. हाँ, अब वो double नाटक कर रहे standard हैं. everything. हाँ, डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं ना वहाँ. यहाँ के ना वहाँ. ओ भाई साहब. ये उनके स्नाइपर्स होंगे इतने अच्छे से गोल. हाँ वही है. हाँ वही है वही है. अब ये सारे एक साथ आ गए होंगे शायद. आओ म्यूजिक भाई साहब. पसीने छूट गए. स्टाइल. और ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहे हैं. हाँ. ओ भाई साहब. ओ एंट्री है भाई साहब.
ओ भाई साहब। देख भी नहीं रहे उनकी तरफ। हाँ ये तो शर्म नाम। ஜெயிலர் இதெல்லாம் உனக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். உனக்கு நான் வேற ஒண்ணு வச்சிருக்கேன். பாரு डरा உன் नहीं। ஃபேமிலி எங்கிட்ட தான் இருக்கு பாரு. நீ இப்ப இங்க இருந்து கிளம்பிட்டனா அவங்கள நான் உயிரோட விடு. मुझे नहीं लगता उनको कोई फर्क भी पड़ता है। हाँ? काम क्यों नहीं कर रहा है? நீ இங்க இருந்து போறியா இல்லனா இவங்க ரெண்டு और பேரும் தலைய वो வெட்டி अभी போடுவாங்க. जैकी सर की மூணாவது तरह हो। ஒருத்தன் இருப்பானே. யாரு உன்னோட பேர் என்னதானே? ஏய் அவரே சேர்த்து வெட்றா. भाई साहब प्लान तैयार रहता है। वही तो। ಅಣ್ಣ ಯಾರೋ ಕಥಾ ತೊರಕ್ರ ಸತ್ತಂಗೆ ಕೇಳ್ತದಣ್ಣ. इतने बेवकूफ थोड़ी ना है कि अपने हाँ फैमिली को बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले दिखाए थे वो होंगे मुझे शायद। वही लग रहा है। हाँ वही है। क्या एक एक कैरेक्टर का सही यूज किया गया है भाई। आप लॉजिक भी तो दिखाया ना कि एक इंसान हर जगह नहीं हो सकता है। उनके सारे फ्रेंड्स अब मिलके उनके लिए लाए। चलो नीचे उतरो। अमेजिंग। लुक दे रहे हैं। कहाँ से? मैं भी वही सोच रहा हूँ। उन्होंने भी टिश्यू रखे थे ना पहली बार। अब तो उन्हें भी डरने लग रहा है। उनके रियल वाले और वही टेक्निक है मोहनलाल सर। मोहनलाल सर यार जबरदस्त यार। एक एक कैरेक्टर जो लास्ट उनका लुक देखो कितना सच में। फंकी है बिल्कुल। वो पुराने टाइप के पूरे गुंडे। आहा ऐसा लग रहा है ये जेलर कम और इनका एक गैंग होता होगा एक पहले। टिश्यू पेपर ले लिया। तो उनकी टेक्निक है। हाँ स्पीड भाई सही साहब। है। पहले वाले सीन में भी तो वो ऐसे आगे रह के खड़े थे। ये है भाई स्माइल। हुकुम हुकुम। टाइगर का हुकुम। ये है क्लासिक। और तीनों देखो उनकी सबकी सिगार एक जैसी है। ब्रो कोड होगा उनका। हाँ। தம்பி ओ भाई साहब गूज़बम्प सीन है। என்ன கொன்னுட்டு உன்னால நிம்மதியா இருக்க முடியாது. என் பின்னாடி பெரிய ஒரு உலகமே இருக்கு ஜெயிலர். இது ஒரு பெரிய நெட்வொர்க். யார் யார் எப்ப வரும்னு உனக்கு தெரியாது. உன் வாழ்க்கை நரகமாயிடும். லாஸ்ட் வார்னிங். எல்லாமே இதோட விட்டுட்டு போ. सच। वही है ना। हाँ किसी टैंक में लोगों को डुबो डुबो के मारता है ना। अब उनको कहीं ना कहीं लग रहा है। मेरी मौत तो है। மனசிலாயோ ओ भाई साहब
रजनीकांत सर का अभी भी एक्शन कितना सही लगता है यार देखने में। நீ என்கிட்ட ஜெயிச்சிட்ட ஆனா உன் பையன்கிட்ட அவன் என்னோட மோசமானவன் एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सिस्टम के अंदर रह के जो तो अगर उससे बुरा क्रिमिनल वो है तो उसे मौत भी उससे भी ज्यादा बुरी मिलनी चाहिए। अप्पा मुझे बख्श दो। मुझे नहीं लगता ये बख्शने वाले होंगे। இப்போது ஏதாவது சொல்லணுமா? एक आखिरी बार शायद बताने वाले। பிள்ளைங்க கெட்டவங்களாயிட்டா பெத்தவங்க வாழ்க்கை நரகமாயிடும். இல்லப்பா, நான் அது எனக்காக பண்ணல. நீங்க, அம்மா, ஸ்வேதா, ரித்து எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும். அதுக்காக தான் இதெல்லாம். இனிமேல் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேப்பா. सफाई देना என்னை चाहिए। மன்னிச்சிருங்கப்பா. लेकिन उनकी सफाई भी काफी फेक लग रही है। சரிப்பா, நீ செஞ்ச தப்பெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட்ல சொல்லிட்டு சரண்டர் ஆயிடு. சரண்டரா? என்னப்பா சொல்றீங்க? சரண்டர் நான் எப்படி பார்க்க முடியும்? உங்க மரியாதை என்ன ஆகுறது? டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன பத்தி என்ன யோசிப்பாங்க? அம்மா, ரித்து, ஸ்வேதா இவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்களா? முடியாதுப்பா, என்னால சரண்டர் ஆக முடியாது. मरो நீ சரண்டர் ஆகணும். உனக்கு வேற வழியே இல்லை. சரி, उनकी दी हुई गन அப்ப எனக்கும் इसीलिए तो दी थी ना। வேற வழியே चेक தெரியல. कर लो। मुझे लगा ही था कि ऐसा कोई ना कोई मोमेंट You've जरूर always बने। been an inspiration to me, and I नहीं love you so much. இந்த விஷயம் बस वो यही देखना चाहते थे कि ये गन पॉइंट करते हैं या नहीं। மட்டும்தான் தெரியும். शायद वो खुद நீங்களே को मारे। இல்லைன்னா शायद। இந்த விஷயம் இங்கேயே முடிச்சிடும். नहीं, वो रजनी सर को ही मारने का ट्राई मुझे नहीं लगता नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। खुद को मारे। சாரிப்பா. वो साइन था लास्ट तक उन्होंने ट्राई किया। लेकिन उन पे क्या बीत रहे होंगे इस पर। अपने बेटे को मारने का ऑर्डर देना पड़ा। भाई साहब, फिर भी गन पे पॉइंट कर। உங்க டாலர் மட்டும் ஏன் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு? அது உன் அப்பா வயசுல இருக்கும்போது பல்லு விழுந்துச்சு. அப்போலேருந்து இந்த பல்ல டாலர்ல பத்திரமா வச்சிருக்கேன். ओ भाई साहब। तो उनके बेटे का था वो दांत, उनके पिता का। भाई साहब, इस मूवी की एंडिंग जितनी पेनफुल है दोस्तों, उतनी ही इस मूवी की एंडिंग इतनी धांसू लगती है हर कैरेक्टर के साथ। और जितने भी कैरेक्टर हमें दिखाए गए वो काफ़ी मैच्योर कैरेक्टर लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की है, जैसे कि शिवा राजकुमार हो गए, उसके बाद मोहनलाल हो गए, और हम जैकी श्रॉफ को बोल सकते हैं दोस्तों। कमाल के इसमें कैमियो थे और अमेजिंग ये मूवी थी।
मतलब ऐसे नहीं दिखाया है कि थोड़ा सा उनका कैमियो दिखा दिया और फिर उनको मतलब एंडिंग तक दिखाया ही नहीं है। एग्जैक्ट लास्ट तक उनका एक कैरेक्टर था कि वो कैसे रजनी सर को हेल्प करते हैं उनके मिशन को कंप्लीट करने में। और जो जो स्टाइल में उन्होंने पहले दिखाया, जैसे वो ट्रक वाला सीन मोहनलाल सर, हाँ जैसे वो जिस तरीके से रजनी सर वो ट्रक के आगे आके रुकते हैं और वो सिगार जलाते हैं, उसी तरह मोहनलाल सर का भी वो सीन दिखाया है। और बहुत वो डाइनिंग टेबल वाला सीन जहाँ पे फाइट सीन होते हैं, वो टिश्यू पेपर सरका के देते हैं। और वो मतलब एक एक ऐसे लग रहा था, वो सीन ऐसा था ना कि हर एक एक्टर के लिए वहां पे ऐसा लग रहा था वाह क्या कर रहे हैं, क्या सीन है ये, मतलब बहुत जबरदस्त था वो ओवरऑल। सच में वो प्रेम इतना मतलब हम बोल सकते कंप्लीट लग रहा था अपने आप में ही, जिसे देखने में काफी मजा आ रहा था। और ये बाकी मूवीज से काफी डिफरेंट मूवी मुझे लगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बाकी मूवीज होती है उनमें कैमियोज तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें एंडिंग तक उस कैरेक्टर का कोई रेलेवेंस नहीं बचता है। लेकिन इसमें हर कैरेक्टर का जिस तरीके से एंडिंग में यूज किया गया है, वो हैट्स ऑफ है भाई नेल्सन को इसके लिए। और एक ऐसे लग रहा था ना कि ये जेलर का ना, ये दो चार उनके पंटर लोग होंगे शायद जो उन्हें बार बार हेल्प करते होंगे। हाँ। और ऐसे लग रहा था कि एक टाइम पे फ्लैशबैक में इनकी भी बहुत बड़ी गैंग होगी जो Exactly. ऐसे टेढ़े लोगों को सीधा करती होगी। और जिस तरीके से वो हेल्प कर रहे थे आखिर तक, मतलब तो मजा आ गया। बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग हो सकता है हाँ। इनके बीच। और उनकी स्टाइल्स भी ऐसे लग रहा था कि चलो इनका कोई ब्रो कोड होगा, और मतलब ऐसे लग रहा था कि एक दूसरे के स्टाइल कॉपी कर रहे हैं ये। मतलब इनका श्योर है कि इनका कोई तो भी बड़ा गैंग होगा, और जेलर 2 में मुझे लग रहा है कि ये होंगे कि सबके कुछ सब। चीजें तो आने वाली है आगे। लेकिन दोस्तों जेलर ने जो है हर जंग जीती है, लेकिन आखिरी जंग है जो अपने बेटे के सामने हारे, बेटे की वजह से हारे हैं। वो काफी पेनफुल मोमेंट था, और मुझे लगा भी नहीं था दोस्तों कि उनके बेटे इस तरीके से मतलब मेन जो है वो विलन से भी हम बदतर बोल सकते हैं उस हाँ, सिचुएशन उसने को। कहा भी था ना कि मुझसे बड़ा दुश्मन जो है ये तुम्हारा बेटा है, और वो सही भी था। सिस्टम के अंदर रह के वो खुद करप्ट था और खुद बुरा इंसान था, तो ऐसे लोग सिस्टम को खोखला करके छोड़ देते हैं। तो उसका कहना भी सही था कि मुझसे बुरा वो तुम्हारा बेटा है। और वो उन्हें लास्ट तक एक हाँ। एक बार पूछते, चांस देते रहे कि तुम्हें कुछ कहना है मुझसे और कुछ। बिल्कुल उसके बावजूद भी उन्होंने एक लास्ट चांस दिया कि सरेंडर कर लो, लेकिन ऐसा नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कर दिया तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि वो जो लास्ट रिक्वेस्ट वो खुद कर रहे थे उसमें भी ऐसा लग रहा था कि वो फेक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा अगर होता तो हाँ। शायद वो दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं था। और वो जो गन उन्होंने दी थी वो शायद इसीलिए दी थी कि देखते हैं ये हाँ मुझ पे पॉइंट। गन चलाता है या खुद पे चलाता है। बट उन्होंने जैसे ही वो उन पर पॉइंट की वो गन, तो जैसे गॉगल निकाल के जो उनको ऑर्डर दिया है ना, वो मतलब एक एक चीज बेहतर है इसमें। तो टाइगर का हुक्म था ये। हाँ। सच में तो बहुत मजा आया दोस्तों इस मूवी को देखने में। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों जेलर के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।